Good morning, students. Today we will start our new chapter, the First World War. We have started now the contemporary world. The first chapter is the First World War. As I have told you today during the interaction in the virtual class that I will take a test as soon as our virtual class will starts properly. Then on the very first day I will take your test from the chapter Independence and Partition of India. This I am telling to all the students, those who have not attended today's virtual class. Now we will start the contemporary world. The first question arises that why the war is known as First World War. So many wars were fought in the world, in many continents, many countries, they were fighting with each other. Then why only this war was known as the First World War? Pehla reason, firstly the war was fought on the land and in the air, on the sea, under the sea, and with all the resources of the world mobilized for the military purposes. पहला रीज़न ये था कि this war was fought on the land also, air also, water also, underwater also, and with all the resources were used in the war. That is why this war was known as First World War. Secondly, this war began in the Europe. ये war यूरोप में शुरू हुई थी, but very soon it spread to the other continents of Asia and Africa. But it spread to the other continents of the world also. Thirdly, most deadliest consequences of this war, the result of the war, the consequences of the war was felt all over the world. इसका जो war का असर था, it was felt in other part of the world as well, all over the world, but rather we should say इसका असर पूरे world में दिखाई पड़ा. That is why this war was known as World War. These are the reasons why the war is referred to as the First World War. तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि why the war fought in 1914 to 1918 was known as First World War. तो आपका यहाँ 1, 2, 3 करके 3 रीजन्स पहले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में है. अब आपका यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है. मेन जो आपके बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द वॉर. अब वॉर हुई क्यों? तो यहाँ पर मेनी रीजन्स आर देयर इन योर बुक. आई विल शो यू. मेनी रीजन्स आर देयर. पॉइंट वाइज इट इज़ रिटन आर्मामेंट रेस, है ना. लेकिन वन बाय वन वी विल टेक. लाइक फर्स्ट इज इंटेंस नेशनलिज्म. So here I have noted down few points which is important in this paragraph. I'll show you. Intense nationalism. Intense nationalism में केसर विलियम, he was the new emperor of Germany. ये जर्मनी का एम्परर बना, ठीक है. He wanted to make Germany as the leader of the world. वो चाहता था जर्मनी should be the leader of the world. ये इसकी जो इच्छा थी. इंटेंस नेशनलिज्म मीन्स लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स वंस मदरलैंड. इंटेंस नेशनलिज्म हम उसको कंडीशन को कहते हैं कि व्हेन द नेशनलिज्म एक्सीड्स अप टू दैट एक्सटेंट दैट द वन कंट्री वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड. मतलब टू फुलफिल देयर डिज़ायर व्हेन दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द अदर कंट्रीज. तो उसको हम कहते हैं इंटेंस नेशनलिज्म, ठीक है. तो केसर विलियम बिकेम द न्यू एम्परर ऑफ जर्मनी एंड ही वांटेड जर्मनी टू मेक द लीडर ऑफ द वर्ल्ड. पहली बात, टू फुलफिल हिज डिज़ायर, फर्स्ट व्हाट ही डिड, ही अटैक्ड ऑन फ्रांस एंड टुक एल्सेज एंड लोरेन एरिया फ्रॉम फ्रांस. ये एल्सेज लोरेन एरिया, दिस वर्ड विल कम अगेन एंड अगेन, सो यू रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. क्योंकि एल्सेज एंड लोरेन वर मेनी रिसोर्सफुल एरियाज ऑफ द फ्रांस विच वॉज टेकन बैक by the Germany in the Franco-Prussian War. यानी जर्मनी defeated France and took Alsace and Lorraine area from France. और थर्ड पॉइंट इज अनसेटिस्फाइड बल्कन स्टेट. बल्कन स्टेट में ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, they were there. There also the intense nationalism was there. Why I am not explaining it here? Because we will discuss the Balkan state in detail, because here only the world war was started. So in the immediate cause of the world war we will discuss about the Balkan problems and the Balkan states in detail in the next point, ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक इंटेंस नेशनलिज्म के 3 पॉइंट मिलेंगे. आपका क्वेश्चन आएगा लाइक व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हियर इंटेंस नेशनलिज्म विल बिकम द फर्स्ट कॉज. तो इंटेंस नेशनलिज्म में कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो आपको 2 या 3 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका आर्मामेंट रेस.
आर्मामेंट रेस मतलब हथियारों की दौड़. Due to the intense nationalism, when the one country started attacking on the other country, so they need the arms. So due to the intense nationalism, the Europe was turned into vast armed camps. पूरा यूरोप एक बड़े armed camp में divide हो गया. Each country went on preparing for war and arming itself to the teeth. हर country अपने आप को war के लिए तैयार करने लगी and they were keeping themselves ready to fight at any time. In order to protect his colony, he was made Kiel Canal deeper. यहाँ पर एक और घटना हुई कि to protect its colony in Asia and Africa, one canal was there, Kiel Canal. जैसे समुद्र का पानी होता है वो ऐसे अगर किसी जगह पे ऐसे आ जाए ना तो एक कैनाल टाइप बन जाती है. तो यहाँ पर वॉरशिप को शेल्टर देने के लिए ही हैज़ मेड, क्योंकि बिग शिप्स थे तो टू गिव शेल्टर टू द वॉर्स ही मेड कील कैनाल डीपर. ही मतलब कौन? जर्मनी मेड कील कैनाल डीपर. तो ब्रिटेन अपोज दिस कि दिस कुड डिस्टर्ब द पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, बट जर्मनी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स दिस. फिर देयर वॉज एन आर्म रेस एंड द पिक्यूलियर फीचर. सबसे पिक्यूलियर फीचर इस आर्मामेंट रेस का क्या था? अगर वन कंट्री वॉज इंक्रीजिंग इट्स आर्म, द अदर कंट्री वॉज कंपेल्ड टू डू द सेम. अगर दो कंट्री आसपास हैं, अगर ये कंट्री अपने हथियार बढ़ा रही है तो दिस कंट्री वॉज कंपेल्ड टू डू द सेम. दिस वॉज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ द आर्मामेंट रेस. तो आर्मामेंट रेस आपका सेकेंड पॉइंट बनेगा. सेकेंड पॉइंट मतलब अगर इफ द क्वेश्चन विल कम ऑफ 3 marks तो ईच हेडिंग विल कंप्राइज ऑफ 1 marks ओनली. तो दैट इज सफिशिएंट. इवन यू कैन राइट लेस देन दैट, not more than that. So these are the points. Armament race में we have studied because of the intense nationalism, the Europe was turned into the vast armed camps. Each country went on preparing for the war and arming itself to the teeth. In order to protect his colony, Germany made Kiel Canal deeper, and there was an armed race. And the peculiar feature of such an armed race is that if one country was increasing its armaments, the other country was compelled to do the same. अब आता है कि द डिवीजन ऑफ द यूरोप. द होल यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू 2 आर्म कैंप्स. यानी कि व्हेन द इनसिक्योरिटी अराइजेज इन द वर्ल्ड, तो फ्यू कंट्रीज दे जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे मेड अ पैक्ट. व्हाट डज इट मीन? इट वॉज काइंड ऑफ मिलिट्री पैक्ट. like if one country is attacked by some other group, so the others will come to help that particular country. So first of all, this pact was made in 1879, that is in later part of the 19th century. Germany, Austria, Hungary and Italy, they were there in the Triple Alliance. So when Germany, Austria, Hungary and Italy, they made the Triple Alliance, so Britain, France and Russia, they made another alliance known as Triple Entente. ठीक है, तो as a result of this Triple Alliance, Triple Entente was formed with these countries. तो ये जो मिलिट्री या आर्म्ड कैंप्स बन गए थे, दिस मेक द सिचुएशन मोर वर्सेंट. ठीक है, लेटर व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, इटली जॉइंड दिस ग्रुप. Italy left Triple Alliance and joined the Entente group later when the war was started. ठीक है. Now the rivalry, ये वाला पॉइंट भी आप ये लिखोगे. ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है कि which two armed camps were formed and what were the signatories countries, ऐसे करके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा. तो ये लिखोगे the name of these two armed camps were ये और ये and the signatory countries. अगर इसका पूछेगा तो ये होगा, इसका पूछेगा तो ये होगा. ठीक है. अब ये बन गई. इसका क्या रिजल्ट हुआ? द राइवलरी एंड एनमिटी बिटवीन द टू कैंप्स वॉज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर वन. इन कैंप्स के बीच में जो एनमिटी थी, जो एक एंगर था, वो मेजर कारण बना टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर वन. नाउ द इम्पेरियलिज्म, दैट इज़ द रेस फॉर कॉलोनीज. ये हमको मालूम है. दिस वॉज द टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर कोई मेन कारण पूछता है तो मेन रीज़न वॉज द इम्पेरियलिज्म, दैट इज़ race for the colonies. Britain and France, they were making the colonies before Germany entered into that. So when Germany entered in making the colonies, as Kaiser William wanted Germany to be the leader of the world, so when they Germany entered in making the colonies, so Britain and France, they were getting annoyed and you can say the hostility arises between these two countries. Here also the same thing is written. This time in board paper the question was asked, what do you mean by imperialism?
इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक करके उसको अपनी कॉलोनी बनाने लगती है, टू एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। रेस फॉर कॉलोनीज, ठीक है, ये इस बार 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। देयर वॉज अ मैड स्क्रैम्बल अमंग द यूरोपियन नेशन फॉर द न्यू टेरिटरीज इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक ये होड़ थी कि हाउ कैन दे मेक मोर एंड मोर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, बिकॉज हियर द रिसोर्सेज वर मेनी, and in the Europe, because of the industrial revolution and other revolutions, many factories, industries were opened, so they need the raw material and they need the market also to sell their finished goods, so they need to make many colonies to for the supply of their goods and to get the raw material. And Asia and Africa, we know that these 2 continents are full of resources, so a mad scramble, एक पागलपन सा कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गया यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, to make more and more territories in Asia and Africa. In the 19th century, when Germany entered the race for establishing colonies in Africa, Britain and France, who already had colonies there, made a secret pact. So when Germany entered in the Africa to make the colonies, so already many colonies were controlled by Britain and France at that time. So Britain and France, they had a secret pact with themselves that Britain would have control on Egypt and France would have control over Morocco. So this secret pact was made. So this was opposed by Germany. Germany told that everybody is having the right to have a trade with the Morocco, and Germany told the king of the Morocco to provide all kind of help to him in getting the independence. तो ये एक situation क्या बताती है, the whole situation, कि how the imperialism, how the armament race, how the rivalry between the countries, how to make their country the leader, these were the situation prevailing during the later part of the 19th century, which ultimately led to the First World War. अच्छा, यहाँ पर एक वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दैट एट दैट टाइम नो लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयर who could stop the countries in making the colonies, or who could solve the dispute between the nation. So no effective international organization was prevailing at that time, although Tsarists in Russia tried 2 times to establish such an organization, but they were failed. तो ये I have told you till here. जैसे I have told you intense nationalism, few points I have taken it from here. दूसरा आपका है ये आपका बल्कन स्टेट वाला, मैंने बोला था इसमें आप छोड़ दोगे, जितना मैंने जर्मनी का बताया केवल वही याद करोगे। बल्कन स्टेट के बारे में अब जो मैं बताने जा रही हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। Now the armament race, here also I have taken the important points and I have explained you. There was an arm race, and the peculiar feature of such a race is that if one country increases its armaments, the other countries are compelled to do the same. ये मैंने आपको बता दिया, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है आर्मामेंट रेस में। और यहाँ पर भी देखिए बोल्ड लेटर में बिल्कुल क्लियरली रिटन, ईच कंट्री वेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर एंड आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ, ठीक है। नाउ द डिवीजन ऑफ द यूरोप इनटू 2 पार्ट्स, यहाँ पर ट्रिपल एलियंस एंड ट्रिपल एंटिटी इज देयर, ये भी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना करके बता दिया। अब हियर यू विल हैव टू लर्न दिस लाइन ऑल्सो, दिस आई हैव रिटन इन माई नोट्स ऑल्सो, दैट द राइवलरी एंड एनमिटी बिटवीन द 2 कैंप्स वॉज द मेजर स्टेप टूवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 1. फिर मैंने आई हैव टेकन दिस पॉइंट ऑल्सो, इम्पेरियलिज्म एंड रेस फॉर द कॉलोनीज। देन बल्कन स्टेट आई विल एक्सप्लेन नाउ। नो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था विच कुड सॉल्व द dispute between the countries. यहाँ पर although twice the efforts were made by the Tsarists from Russia, but that was failed. Then came the Sarajevo crisis. Sarajevo crisis was the immediate cause of the First World War. अब देखो ये क्या था, अब I am going to explain this Sarajevo crisis. यहीं पर बल्कन स्टेट भी आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको कह रही हूँ। In the Balkan state, Serbia and Austria-Hungary, these were the 2 main countries. 2 main countries were there in the Balkan state. Serbia was a very powerful country. Austria-Hungary was also not less than Serbia. Serbia wanted to acquire the nearby areas of Serbia where the people of Serbian origin usually live. आसपास के एरिया जहाँ सर्बियन ओरिजिन के लोग रहते थे, सर्बिया उनको अपने में मिला करके एक पैन स्लैब एम्पायर बनाना चाहता था, एक बड़ा स्लैविक कंट्री बनाना चाहता था, स्लैविक एम्पायर बनाना चाहता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक।
रशिया और सर्बिया इज़ राइमिंग, ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी, सर्बिया एंड रशिया। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री थी विच सर्बिया वांटेड टू हैव, उसका नाम था बोस्निया एंड अदर कंट्री वाज हर्ज़ेगोविना। Serbia wanted to acquire these countries, but Austria and Hungary attacked on Serbia, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पे अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया। देन द होस्टिलिटी अराइजेज बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ये बल्कन स्टेट में ही थे। तो यहाँ पर बल्कन प्रॉब्लम, इंटेंस नेशनलिज्म, इसके बारे में कहीं भी अगर आपको लिखना हो तो इंटेंस नेशनलिज्म में आप सर्बिया का नाम लिख सकते हो कि सर्बिया वांटेड टू एक्वायर द नियर बाई एरियाज वेयर द सर्बियन ओरिजिन पीपल यूजुअली लिव एंड टू मेक अ पैन स्लैव एम्पायर। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज हियर ऑल्सो द इंटेंस नेशनलिज्म वॉज देयर बिकॉज दे अटैक्ड ऑन बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ये आप बल्कन स्टेट में ये प्रॉब्लम आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने उधर बल्कन स्टेट छोड़ दिया था। अब क्या हुआ कि बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, अब यहाँ पर आ जाओ। वन डे द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, क्राउन प्रिंस मतलब युवराज, वन डे द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दे विजिटेड बोस्निया इन द नेम ऑफ द बोस्नियन कैपिटल इज साराजीवो। बोस्निया का जो कैपिटल है उसका नाम है साराजीवो। साराजीवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज और उनकी वाइफ गए। क्यों गए? क्योंकि वो अब उनके कंट्रोल में आ चुका था। तो वन डे द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी विजिटेड साराजीवो विच वॉज द कैपिटल ऑफ बोस्निया। हियर दे बोथ वर असैसिनेटेड, मार दिया गया उनको, असैसिनेटेड हत्या करना, असैसिनेटेड बाय 19-year-old बोस्नियन बॉय। They were killed by 19-year-old Bosnian boy. Although the subject was Bosnian, but Austria-Hungary blamed Serbia that Serbia is running many anti-Austrian society in Bosnia and Herzegovina and providing them all kind of help. This boy belonged to a society named Black Hand Society. ये जो लड़का था ये ब्लैक हैंड सोसाइटी को बिलोंग करता था एंड दैट सोसाइटी वॉज ऑल्सो हेल्प्ड बाई सर्बिया। इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी टोल्ड दैट ऑल्दो दिस असैसिनेशन टुक प्लेस इन साराजीवो द कैपिटल ऑफ बोस्निया बट इट वॉज प्लान्ड बाई सर्बिया। So Austria Hungary told Serbia to hand over all the criminals and to stop all anti-Austrian society in Serbia and the nearby areas. But Serbia refused. सर्बिया ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया। देन ऑस्ट्रिया अटैक्ड ऑन सर्बिया, रशिया केम टू हेल्प सर्बिया एंड जर्मनी केम टू हेल्प ऑस्ट्रिया। क्यों जर्मनी केम टू हेल्प ऑस्ट्रिया? इसलिए ये पैक्ट जो साइन हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ थे। यही पैक्ट साइन हुआ था कि हम में से किसी पे भी अटैक होता है तो हम एक दूसरे की मदद करने आएंगे। तो व्हेन रशिया केम टू हेल्प Serbia, Germany came to help Austria-Hungary and the First World War broke out. तो First World War broke out because of Sarajevo crisis. इसी को हम कहते हैं Sarajevo crisis। ये Sarajevo बोस्निया का कैपिटल है। This was the reason of the First World War, या रीज़न तो हम नहीं कह सकते, immediate cause of the First World War, इसी को हम कहते हैं Sarajevo crisis. Here in your book also it is written very clearly Sarajevo crisis। यहाँ पर उस बॉय ने जिसने असैसिनेशन किया था उस बॉय का नाम था ग्रेविलो प्रिंसेप। हियर फोटो देखो, ग्रेविलो प्रिंसेप किल्स आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी। जो क्राउन प्रिंस था उसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ का नाम था सोफी। ठीक है, सो टिल हियर आई हैव कवर्ड द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो यू विल हैव टू रीड, पहली लाइन से लेकर के साराजीवो क्राइसिस तक आप अच्छी तरीके से रीड करोगे। एंड आई होप दैट द प्रीवियस चैप्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया यू डिड द क्वेश्चन आंसर्स। सो फिनिश ऑफ दैट चैप्टर एंड रीड टिल हियर एंड प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।